Greetings everybody. This is Sushma Ruhal and you are watching Smart English Learning with Sushma Ruhal. In this video we will learn about determiners, what are the types of determiners, and in detail we will come to know with the help of examples that how will you come to know why we are using such kind of word in this example. So means to say we are going to practice here about determiners in full with examples. So let's start there. First of all, what do you mean by determiner? Determiner means determiner is a word that introduces a noun. जो noun को introduce करता है. It always comes before a noun. It always comes before a noun, not after. Means ये हमेशा noun से पहले आएगा, noun के बाद में नहीं आएगा. And it also comes before any other adjectives used to describe the noun. Means to say डिटर्मिनर हम कब यूज करते हैं? डिटर्मिनर्स हम नाउन से पहले या फिर उस एडजेक्टिव से पहले इसको यूज करते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. So let's start there. How many types of determiners are there? There are 6 types of determiners. The very first is articles. Everybody is familiar with articles, but you will learn some unique ways to identify articles in this video. Next is their possessives. Possessives are there like my, your, his, her, its, our, their, whose. Demonstratives are there like this, that, those, these, etc. Next are numerals. Numerals are like 1, 2, 3, 4, 5 in counting. Next is ordinals. Ordinals means like 1st, 2nd, 3rd, 12th, 15th, 20th, like this. Next will be the quantifiers. Quantifier means which will tell you the quantity of the thing, which will tell you the quantity of noun. So we are going to learn in detail. First turn is of articles. Articles, you know, everybody knows articles a, and the, but where you have to use a and the, just learn in the unique way. Everybody knows that a and we always use with countable noun. With countable noun means which we can count. A means 1, and mean also 1, means to say we are using and with countable things, countable noun, right? Like and we always use with Hindi vowel sounds a to out. So this is the new way that you will learn how to use, where to use and there. A will be used. A will be used where ka to ha sound will come. But if the sound is coming of the vowel like a, o, au, e, u, like this Hindi vowel sounds, a, e, u, a, I, o. So these are the Hindi vowels. And in these Hindi vowels, if you are just pronouncing the word and the sound is coming of these vowels, you have to use word and before now. How will I prove it? Like our sound is here, so you will use an r. Honest, o sound is coming here of Hindi vowel sound, so you will use an honest. May. Now, though sometimes we are using that whenever we are using a, e, I, o, u, then you have to use an. But if may is there, may. So may is not a, e, I, o, u. So why are using an before may? Because the pronunciation when the sound is there of m, a sound of Hindi vowels. So a sound is coming. That's why you will use he is an MA in history. He is an MA in political science. He is an MA in economics. Okay. Next is like SST teacher. I have given you SST teacher. A sound is coming here, means to say a sound is of Hindi vowels. So you will use she is an SST teacher. He is an SST teacher. So before SST, before MA, whenever you are coming to know that the sound is of A to O, means a, e, u, a, I, o. Like this, if you are getting the sound of any of the English word, then you have to use only and there. Like English, e is there, so e sound means an English teacher, right? I will prove it with the help of example also there.
that why we are using such kind of words. Next is a. Where will you use a? This a alphabet, this a article you will use where the Hindi consonants are ka to ha. Hindi consonants are there ka to ha. If the sound of the word is from ka to ha, ka kha ga gha to ha, then you have to use a there. Like European, your sound will come in ka to ha. Euro, your sound again, so you will use here, what will you use? Obviously a you will use here. Okay, next is here with the help of example it will clear to you. Like Sneha bought dash ink is uncountable. Okay, so we will not use any kind of article here, because article we are using for countable. Like a is one, an is also one. Okay, and the is also for specific things, and zero article will be there when that is uncountable. So this ink is uncountable, so you will use no article here. Next is like Pihu sold dash ink pot. Now the ink is in the pot. Ink is in the pot, so this is countable. Like one ink pot, two ink pot, three ink pot, we can count. So we will use e. E sound is coming here. So e is vowel sound of Hindi alphabets. Like this, you will use and there. Okay. Next is Ishika lost dash 1 rupee note. Now see one wo sound is coming here, wo, and wo sound means katuha. So what will you use here? A. So you will use a here. Ishika lost a 1 rupee note. Next is there some more examples like priest goes to dash temple. If you are going somewhere for the primary purpose, no article will be used. Like priest goes to temple for worship, so no article will be used here. Like Ishika goes to school, so no article will be used because she is going for primary purpose. If somebody is going somewhere for secondary purpose, like Sneha goes to dash hospital to meet his brother. She went there to meet her brother, na? She went there to meet her brother. Her will come here, sorry. So her brother. So this is secondary purpose. She is not going there to get a treatment. She is not going there to get medicine there. She is not going to hospital to treat the patient. So she is going to meet her brother. So what will come here? This is secondary purpose. So you will use the article here because this is specific now. Ria goes to dash bus stand to fetch her mother. Bus stand main purpose is there. Buses will arrive. Okay, and for the passengers to take the ticket, otherwise to take the bus. So here no use of bus taking, no use sorry, Ria is not gone there for bus to take the bus to take the ticket. Okay, so this is secondary purpose to fetch her mother. That's why there will be used the article. Okay, secondary purpose means the article. Specific like material, before material noun, no article will use. Okay, if specific is there, like gold of Russia, there was gold is precious metal. Okay, gold is material, so no article will come. But gold of Russia, this is specific now, Russia's gold, so specific the will come here. He bought a dash gold ring for me. He bought a gold ring, because gold ring we can counter go sound is coming ka to ha, so a will come. I bought a dash gold ring which you liked. ओके, आई बोट मैंने खरीदी, गोल्ड रिंग वो रिंग जो तुम्हें पसंद थी, वो जहां पर वह और वो की साउंड आती है, देयर यू हैव टू यूज द, बिकॉज हियर द गोल्ड रिंग इज स्पेसिफिक व्हाई, बिकॉज ये वो स्पेशल रिंग है जो उसने पसंद की थी. नेक्स्ट, ही इज द बॉय, ये वो लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया. मीन्स क्लास भी स्पेसिफिक है, 5th क्लास में, 6th में, 7th एंड 9th में कौन सी क्लास में फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट इज वो बॉय भी स्पेसिफिक है. सो फॉर द स्पेशल थिंग्स वी ऑलवेज यूज द. So these were your articles. Now the second type is demonstrative. Demonstratives are there: this, that, those, these. Those, these. Okay, so this and these refers to items nearby. Nearby means if the things are near to you, like this, if a single thing is with you, then this. अगर कोई सिंगल चीज आपके पास में है, for that you will use this word. These, अगर ज्यादा सारी चीजें आपके पास में, तो these का यूज करोगे एक से ज्यादा के लिए, मीन्स नियर बाय आइटम्स के लिए.
नेक्स्ट इज दैट एंड दोज, दैट भी फार थिंग्स के लिए होते हैं, दोज भी फार थिंग्स के लिए होते हैं जो दूर होती है आपसे। दैट मीन्स अगर कोई सिंगल चीज दूर है, दोज मीन्स एक से ज्यादा चीजें आपसे दूर है। सो दैट एंड दोज यू विल यूज फॉर far away things, far away items, but that is a singular, those is plural, this is a singular, these is plural, right? And you have to note one thing also there, this and that are singular and these and those are plural. Next in the same, with some examples there, demonstrative adjective there. So what, like this chair is broken, that chair is expensive, वह चेयर एक्सपेंसिव जो उससे दूर है, दिस चेयर मीन्स वो चेयर उसके पास में है, दीज क्लोथ आर वेट, ये कपड़े गीले हैं, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ, तो ये जो बर्ड्स हैं कौन से, वो बर्ड्स फ्लाइंग मतलब कहाँ पे उड़ रहे हैं, साउथ की तरफ वो उड़ रहे हैं, दोज वो दूर वाले। Next is demonstrative pronoun. How will you use them? This is my chair. This is my chair. ये मेरी chair है. That is Peter's house. ये Peter का घर है. Because we are using here pronoun. Pronoun is my here, and here like apostrophe s we are using. So this is also pronoun here. These are her clothes. Her is pronoun. So these are her clothes. So her you are using here. So this is demonstrative pronoun. Those are migrating birds. Those are migrating birds. तो ये जो है वो migrating birds है, sorry वो जो है वो migrating birds है. So this is also pronoun, demonstrative pronoun, because this those word you are using for living beings there. Okay, next is third type. Third is their possessives. Possessives means here like yours, mine, theirs, okay, hers, like these words if you are using like ours. So these are the possessive words in which you are using as there, like the kids are yours and mine, जो बच्चे हैं वो तुम्हारे और मेरे हैं. The house is theirs, जो घर है वो उनका है, and its paint is flaking, और इसका जो पेंट जो फ्लैक होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है. The money was really theirs, रियल में ये मनी उनकी है, for the taking, जो ले रहे हैं. Okay, we shall finally have what is rightfully ours. हमें finally, we shall finally have, हमें finally वो लेना चाहिए what is rightfully ours, जो कि actual में हमारा है. Their mother gets along well with yours. And next is what's mine is yours my friend, जो मेरा है मेरे friend वो तुम्हारा है. What's mine is yours my friend. The dog is mine, मेरा dog है. The cat is yours, the ring is hers, the bag is theirs. So like these words when you are using in the sentences, those are known as possessives. These are known as possessives, mine, yours, hers, theirs, ours. So these are the words are possessive there. Next and fourth are quantifiers. Quantifiers means quantity, in which the words by watching those you can say this is denoting the quantity of the thing, quantity of the noun word. Okay, like all, sorry, few, kuch, a few, the few, little, a little, the little, some, much, many. I will explain you with the help of examples. What do you mean by few? All means sorry. Few means ना के बराबर, जिनमें काम नहीं चलेगा, and this is giving you negative sense. Okay, a few भाई है तो बहुत कम. This will show you the less quantity. It will show you the less quantity, but हाँ इससे काम चल जाएगा. A few means quantity बहुत है, means few means very less. Few means already होता क्या, very less होता है. तो few क्या हो गया, इतना कम कि काम नहीं चल सकता, ना के बराबर है. A few ठीक है बहुत कम है बट काम चल जाएगा. The few means जितना भी है वो सारा, जितना भी कम तो है, जितना भी कम है लेकिन वो सारा का सारा कोई यूज कर रहा है उसको. लिटल, अब ये जो फ्यू होता है, फ्यू किसके लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल. फ्यू किसके लिए, अनकाउंटेबल. एंड लिटल, अ लिटल, द लिटल. ओके, लिटल, लिटल विल बी देयर फॉर व्हाट, यस, लिटल विल बी देयर अगेन ना के बराबर. जो क्या होता है, ना के बराबर मीन्स नेगेटिव सेंस देता है कि लिटल वाटर. सॉरी, जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है वो होते हैं काउंटेबल के लिए. काउंटेबल अगर हम काउंट कर सकते हैं कि फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, मीन्स फॉर काउंटेबल थिंग्स. अगर आप किसी चीज को काउंट कर सकते हैं देन यू विल यूज दीज वर्ड्स. इफ यू आर नॉट एबल टू काउंट मीन्स few and little have same meaning.
फ्यू मीन्स भी क्या होता है, ना के बराबर, नेगेटिव सेंस देता है कि नहीं है बिल्कुल, इतना है कि नहीं है बिल्कुल। लिटिल मीन्स भी क्या होता है कि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बहुत कम, मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी। आ फ्यू क्या होता है, थोड़ा सा है जिसमें काम चल जाएगा। आ लिटिल भी क्या होता है, थोड़ा सा जिसमें काम चल जाएगा। द फ्यू क्या होता है, बहुत कम है लेकिन सारा का सारा। द लिटिल भी क्या होता है कि बहुत कम है लेकिन सारा का सारा। बट ये काउंटेबल के लिए यूज होता है, ये अनकाउंटेबल के लिए। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इट विल क्लियर टू यू मच मोर, जस्ट वेट देयर। सम होता है कुछ, मच भी होता है कुछ, और मैनी मीन्स होता है मैनी, हाउ मैनी, कितने। ओके, मैनी विल यूज फॉर काउंटेबल, मैनी को हम काउंट कर सकते हैं, मच और सम को हम काउंट नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो फॉर अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी, ही टुक ऑल द बुक्स, उसने सारी बुक्स ली। अब बुक्स क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए हम ऑल का यूज करेंगे। ओके, ही टुक ऑल द बुक्स, उसने सारी बुक्स ली। मैनी किचन्स आर टोट, बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं, आर टोट उनको सिखाया जाता है, टू हंट शिकार करना, बाय देयर मदर्स उनकी मदर के द्वारा। तो मैनी किचन्स भी बहुत सारे, मैनी किसके लिए होता है, बहुत सारे, लेकिन किटन्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, किटन जो होता है इनको काउंट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर मैनी। लाइक डू यू हैव एनी क्वेरी, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेरी है, एनी क्वेरी, क्वेरी को भी क्या करेंगे, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब सम है यहाँ पे, मिस यहाँ पर वो काउंट नहीं कर पा रहे कि कुछ है, लेकिन कितने हैं वो उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि मनी जो वो कितनी है। हाउ मच इंटरेस्टेड आर यू इन इट, आप कितने इंटरेस्टेड है इसमें, कितने, काउंट नहीं कर सकते, इंटरेस्ट को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर मच। The next is there, little and few both are used for less quantity. It's clear to everybody that little and few both are used for less quantity। भी दोनों का मतलब क्या होता है कि बहुत कम क्वालिटी, सॉरी बहुत कम क्वांटिटी होना। बट द डिफरेंस इज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इनमें जो डिफरेंस है, देखो मीनिंग सेम है दोनों का, लिटिल मीन्स और फ्यू मीन्स, दोनों का मीन्स क्या होता है, लेस क्वांटिटी। बट डिफरेंस किसका है कि एक तो काउंटेबल के लिए यूज होता है, दूसरा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो लिटिल होता है, जैसे होता है ना लिटिल वाटर, अब लिटिल वाटर को तो हम काउंट नहीं कर सकते, सो वी आर यूजिंग लिटिल वर्ड फॉर अनकाउंटेबल। लिटिल का मतलब पर्पस विल नॉट कंप्लीट एंड इट विल गिव यू नेगेटिव सेंस, मींस ऐसे। लिटिल का मतलब बहुत कम, इतना कम कि नेगेटिव है, हमारा काम नहीं चल सकता, ना के बराबर, बिल्कुल ही ना के बराबर है। और लिटिल, लिटिल मीन्स बहुत कम है लेकिन हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। इट विल गिव यू पॉजिटिव सेंस कि हमारा कम से कम काम तो चल जाएगा। द लिटिल होता है कम है लेकिन सारा का सारा जितना भी है, लेस बट होल, जितना भी है सारा का सारा उससे हमारा काम चल जाएगा। मीन्स इसमें होल जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि द लिटिल में क्या होता है, मतलब क्या होता है, सारा, होल, होल वर्ड यहाँ पर आता है, और ये भी क्या होता है, काम चल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अ लिटिल मीन्स पर्पस कंप्लीट हो जाता है, बहुत कम है लेकिन काम चल गया। बट द जहां पे लग गया, द लिटिल हो गया, तो सारा का सारा जितना भी है। अगर द फ्यू है तो वो भी सारा का सारा जितना है। बट यहाँ पर डिफरेंस है कि लिटिल को हम यूज करें अनकाउंटेबल के लिए, ओके, एंड काउंटेबल के लिए किसको यूज करें, फ्यू को। जैसे फ्यू क्या होता है, पर्पस विल नॉट कंप्लीट, नेगेटिव सेंस। ऐसे है ना कि जैसे लिटिल था, लिटिल में पर्पस कंप्लीट नहीं होता, नेगेटिव सेंस आते हैं। एज वेल एज पर्पस विल नॉट कंप्लीट एंड इट विल गिव नेगेटिव सेंस इन फ्यू ऑल्सो, अ फ्यू। अब अ लिटिल में क्या था कि हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, पॉजिटिव है, ओके, हमारा काम चल जाएगा। सिमिलरली अ फ्यू ऑल्सो, दैट पर्पस विल कंप्लीट एंड इट विल गिव यू पॉजिटिव सेंस। नेक्स्ट इज देयर द फ्यू। द फ्यू मीन्स लेस बट होल, वट एवर इज देयर होल, कि जितना है वो सारा, कम तो है बट जितना भी है वो सारा। एज द लिटल, जैसे लिटल था ना कि लेस बिल्कुल कम है लेकिन फिर भी जितना का जितना है ना सारा उतना हम लेके काम चला सकते हैं अपना। सो दैट इज देयर द फ्यू। नाउ द डिफरेंस इज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एंड focus on the examples there. How will I prove it now? I took dash books he had, I took many books he had, जो वो बुक्स ली जो उसके पास थी। अब जितनी बुक्स उसके पास थी मैंने सारी ले ली ना, आई टुक मैंने ली, बुक्स ही हैड, उसके पास जितनी बुक्स थी मैंने सारी ली, तो सारी की सारी होल के लिए क्या आ गया, द फ्यू। और यहाँ पर द लिटिल क्यों नहीं आया, क्योंकि जो बुक्स नाउन है आपका वो काउंटेबल होता है, वी कैन काउंट बुक्स, दिस इज काउंटेबल, सो फॉर काउंटेबल यू हैव टू यूज द फ्यू। Next is the cat drank dash milk I had.
कैट ने सारा मिल्क पी लिया, आई हैड जितना मेरे पास, अब जितना मेरे पास था सारा पी लिया, तो हमने द लगाना है यहाँ पर द, लेकिन द के साथ मिल्क क्या आपका काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अगर मिल्क है ओनली तो काउंटेबल नहीं है, दिस इज अनकाउंटेबल, हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, इंक को काउंट नहीं कर सकते, ओके वाटर को काउंट नहीं कर सकते, सो दैट इज योर अनकाउंटेबल, सो यू विल यूज योर द लिटल, ठीक है, जितना था उतना ही सारा दूध उसने पी लिया, दिट मीन्स द लिटल, लिटल क्यों? क्योंकि मिल्क जो वो अनकाउंटेबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर मिल्क पोर्ट होता, मिल्क पोर्ट तो काउंटेबल हो जाता और द फ्यू यहाँ पर फिर आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर सुमन इज इन आईसीयू, अब सुमन किस में? आईसीयू में है, दैट्स व्हाई देयर इज डैश होप ऑफ हर रिकवरी। अब देखो आईसीयू की कंडीशन सबको पता है, एवरीबॉडी नोज द कंडीशन ऑफ आईसीयू, दैट इफ देयर इज लास्ट स्टेज ऑफ रिकवरी, last stage of treatment, then we have to admit the patient in the ICU, so there is very little, very little hope, कि हमें बहुत ही कम लिटिल होप है, ना के बराबर है। जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो गया, इट मीन्स क्या हुआ कि आईसीयू में एडमिट होने के बाद तो होप रहती ही नहीं है, मीन्स ना के बराबर हो जाती है कि आईसीयू में एडमिट हो गया तो पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। सो सेम हैपन देयर आल्सो, सुमन इज इन आईसीयू, दैट्स व्हाई देयर इज लिटिल होप फॉर हर रिकवरी। अब होप जो है, होप को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, होप को तो काउंट नहीं कर सकते, तो होप से पहले आपका क्या आ गया? लिटिल आ गया। फ्यू क्यों नहीं आया? बिकॉज होप इज नॉट काउंटेबल, अगर काउंटेबल होता तो फ्यू लग जाता, अनकाउंटेबल है होप तो फिर हमारा लिटिल लग गया, और ना के बराबर होप है तो हमारा क्या लगा? पहले वाला, क्योंकि ना के बराबर क्या होता है? फ्यू होता है और लिटिल होता है। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल देखो क्या है, होप यहाँ पर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर क्या आएगा? लिटिल आ जाएगा। नेक्स्ट, डैश नॉलेज इज डेंजरस। अब एक नॉलेज डेंजरस होती है, कैसे नॉलेज डेंजरस होती है? ना के बराबर नॉलेज डेंजरस होती है? नहीं, कुछ थोड़ी सी हमारी जो थोड़ी सी नॉलेज होती है वो डेंजरस होती है, बिल्कुल कि बिल्कुल जो कम होती है ना, हमारी जो लिटिल नॉलेज होती है वो डेंजरस होती है, या फिर सारी की सारी नॉलेज डेंजरस होती है? देखो सारी सारी अगर लगाएंगे तो द लिटिल आ जाएगा। अब द लिटिल का मतलब जितनी भी नॉलेज है वो सारी डेंजरस है? नहीं होती, थोड़ी नॉलेज हमारे लिए, जो कम नॉलेज होती है वो हमारे लिए डेंजरस होती है। तो यहाँ पर नॉलेज को तो काउंट नहीं कर सकते, नॉलेज को तो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है यहाँ पे, तो हमने क्या लगाया? अ लिटिल। और आ क्यों लगाया हमने यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर कम नॉलेज, लिटिल तो कम के लिए होता है, लेकिन कम नॉलेज मतलब कम नॉलेज है वो डेंजरस है, या हम लगाएंगे द लिटिल कि सारी की सारी नॉलेज जो है वो डेंजरस है। सारी नॉलेज तो डेंजरस नहीं होती, अगर हमारे नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है, कोई किसी चीज की हमें नॉलेज नहीं है तो वो हमारे लिए डेंजरस होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अ लिटिल यहाँ पे आएगा। अ लिटिल क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि लिटिल किसके लिए आएगा? कम के लिए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। उसके बाद अ लिटिल क्यों लगाया? क्योंकि थोड़ी नॉलेज हमारे लिए डेंजरस होती है। हमने खाली लिटिल क्यों लगाया? ना के बराबर तो नॉलेज हमारी डेंजरस होती नहीं, अगर किसी को नॉलेज है ही नहीं तो वो डेंजरस कैसे होगी? और सारी की सारी नॉलेज हमारी डेंजरस हो नहीं सकती, तो व्हाट विल कम हियर? अ लिटिल। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। नेक्स्ट इज देयर डैश पर्सन कैन स्पीक गुड इंग्लिश इन इंडिया। डैश पर्सन, भाई कैसे लोग जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं इंडिया में, कैसे बोल सकते हैं? अब देखो, अगर पर्सन, देखो क्या पर्सन हमारा सबसे पहले क्या? काउंटेबल, हम काउंट कर सकते हैं पर्सन को, तो मीन्स हमारा फ्यू, फ्यू और द फ्यू में से आएगा। अब अगर हम फ्यू लगाए तो ना के बराबर लोग इंग्लिश बोलते हैं? ऐसा तो है नहीं, इंडिया में बोलते हैं इंग्लिश। और फ्यू कि कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। या सारे के सारे, द फ्यू लगेगा कि जो सारे जितने भी लोग हैं वो ही इंग्लिश मतलब कैन स्पीक गुड इंग्लिश, सारे के सारे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आ फ्यू इसके अंदर जो वो एग्जैक्टली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कुछ लोग जो हैं, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू का मतलब कि कुछ लोग जो है वो ही इंग्लिश बोल सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। ना के बराबर तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही कोई नहीं बोल सकता। अगर ना के बराबर होगा तो फ्यू लगेगा, नहीं आएगा। आ फ्यू क्यों आएगा इसमें? क्योंकि कुछ लोग, कुछ के लिए हमारा आ गया, कुछ मतलब कम है, लेकिन जितने भी हैं उतने लोग जो वो क्या है? कम लोग यहाँ पर इंग्लिश बोल सकते हैं इंडिया में। अगर मैं कहूँ कि द फ्यू का मतलब जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर, तो वो तो गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू विल यूज अ लिटिल, सॉरी अ फ्यू, बिकॉज पर्सन इज काउंटेबल। नेक्स्ट इज देयर डैश पीपल आर ट्रूली हैप्पी। डैश पीपल, अब आप ये बताइए कि कितने लोग ट्रूली हैप्पी हैं? पीपल सबसे पहले क्या है? काउंटेबल होता है, पीपल को, लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंट हमने जहां पे कर दिया, पीपल आर काउंटेबल, काउंट जहां पे हुआ वहीं पर हमारा फ्यू से रिलेटेड वर्ड आएगा। अब देखो
फ्यू का मतलब होता है कि ना के बराबर लोग जो वो ट्रूली हैप्पी, ट्रूली का मतलब सच में हैप्पी। अब आप खुद देखो, हर किसी के घर में कोई ना कोई क्वेल होते रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो ना के बराबर ही लोग हैं जो सच में हैप्पी हैं, सच में। और मोस्टली क्या करते हैं, शो ऑफ ही करते हैं। सो दिस इज रियलिटी। तो ना के बराबर लोग हैं जो कि क्या होते हैं, ट्रूली हैप्पी होते हैं। तो ना के बराबर होगा फ्यू, या कहेंगे आ फ्यू पीपल आर ट्रूली हैप्पी, कुछ लोग जो वो ट्रूली हैप्पी होते हैं। यहाँ पर ट्रूली हैप्पी, ट्रूली जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये बहुत मायने रखता है कि सच में ही हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पर ना के बराबर ही लोग हैं जो कि सच में हैप्पी होते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का कि 99.90% यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करते हैं। तो जहां पर चांसेस हमारे बिल्कुल 1% रह जाते हैं, 1 से भी कम, वहां पर क्या आता है, हमारा फ्यू आता है। डैश वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग। अब भाई जो वुमेन होते हैं, जो वुमेन है वो अवॉइड टॉकिंग, बातें करना मतलब बंद कर सकती है, अवॉइड कर सकती है, कर सकती है कोई ऐसे करेगी, वुमेन नहीं करती कभी। तो फ्यू वुमेन मतलब शायद ही कोई औरत होगी जो कि क्या करेगी, अवॉइड करेगी बातें करने को, ठीक है, बातों को, टॉकिंग को अवॉइड करेगी। तो फ्यू का मतलब क्या हुआ कि शायद ही कोई होगी। फ्यू का मतलब क्या होता है, शायद ही कोई होगी, मतलब रेयर चांस है, कोई ना के बराबर ही कोई लेडी है जो टॉकिंग नहीं करती होगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज देयर, ही हैड वेस्टेड ऑल, उसने वेस्ट कर दिया सारा, ऑल डैश मनी, कितनी मनी। अब मनी हमारी क्या आ गई यहाँ पर, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है यहाँ पर, ठीक है, अनकाउंटेबल मनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसना ही हैड वेस्टेड ऑल, अब जितनी भी मनी थी, ऑल आगे ना यहाँ पर, ऑल, ऑल का मतलब होल, कितनी मनी हमारी यहाँ पर अनकाउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल नहीं दे रखी है मनी। वैसे हम पैसे काउंट कर सकते हैं, नोट काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मनी है वो काउंटेबल की सेंस में नहीं दे रखी है। अगर ये बोलते 2000 मनी, 5000 रुपीज, 80,000 रुपीज, तो वो काउंटेबल हो जाता, लेकिन ओनली मनी काउंटेबल यहाँ पर नहीं है। दैट ही हैड, जितनी भी उसके पास थी, जितनी भी उसके पास, तो मतलब सारी आगे, और सारी की सेंस आते ही अनकाउंटेबल में द लिटिल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज द शो वॉज कैंसल्ड बिकॉज, जो शो है वो कैंसिल हो गया था, क्यों, क्योंकि डैश पीपल केम देयर, क्योंकि यहाँ पर जो लोग है वो आए थे, कितने लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, ना के बराबर लोग आए थे। अगर कुछ लोग आते तो फिर भी शो चल जाता, अगर ना के बराबर लोग आएंगे बिल्कुल, फिर तो वो उनको कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। और अगर द फ्यू हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि पीपल काउंटेबल है, पीपल काउंटेबल होते ही आपका जो फ्यू की सेंस आएगी, और फ्यू में यहाँ पर क्या गया आपका, अब यहाँ पर ना के बराबर लोग शो में गए थे, इसलिए क्या हुआ, जो शो था वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, आई सेव डैश मनी एवरी मंथ, अब मैं हर महीने पैसे सेव करता हूँ। अब पैसे फिर से क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो पैसे मैं सेव करता हूँ, पैसे सेव करता हूँ कितने, लिटल, ना के बराबर सेव करता हूँ, बिल्कुल गलत है। आ लिटल, थोड़े से पैसे सेव करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। या सारे के सारे पैसे सेव करता हूँ जो आते हैं, सारे तो कोई भी सेव नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपकी मतलब एक्सपेंडिचर्स हो ही जाते हैं। तो आ लिटल मनी यहाँ पर आएगा आपका, आई सेव अ लिटल मनी एवरी मंथ। आई हैव डैश मनी इन माई अकाउंट, अब मेरे अकाउंट में जो वो मनी है, कितनी मनी है, ना के बराबर मनी है, लिटल है, डिपेंड करता है आपका सिचुएशन के ऊपर। अब आई हैव डैश मनी इन माई अकाउंट, अब मेरे अकाउंट में मनी है, कितनी मनी है, अगर बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर तो मतलब क्या 1 या 2 रुपए है बिल्कुल, या आ लिटल, बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं यहाँ पर, ठीक है, या द लिटल, या सारे के साथ। देखो द लिटल तो यहाँ पर नहीं आएगा, बट यहाँ पर आ लिटल आएगा कि मेरे जो अकाउंट में बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं, बिल्कुल, मतलब ना के बराबर का मतलब कि है ही नहीं बिल्कुल ही, वो तो नेगेटिव सेंस देगा, लेकिन मेरे पास अकाउंट में थोड़े से पैसे हैं, इसके लिए अ लिटल की सेंस आपकी आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट इज नाउ द फिफ्थ टाइप, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स मीन्स व्हेन यू आर राइटिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, 12th, 15th और 14th, तो मीन्स व्हाट इज देयर व्हेन th और rd, th और rd और st वर्ड इज एडेड विद दिस वन, जब यहाँ पर आपका st, nd, th, th, ये जो वर्ड आपका साथ में लग गया, न्यूमेरिकल्स के साथ, नंबर्स के साथ, न्यूमरल्स के साथ, means that is known your ordinals. Okay, like he stood first in class, okay, she was last in the race, okay, she was last